Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the adjustment entry जो आपको अपने GST के पूरे journal entries को पास करने के बाद end में पास करनी होती है. Now अब उसको डिस्कस करने के पहले let us revise GST क्या है and GST में कौन कौन से taxes applicable है. तो coming to what is GST? GST actually means the goods and services tax. ये हमारी कंट्री में इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1st जुलाई 2017 एंड बेसिकली इट इज द टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमारी कंट्री में देर आर ओनली 5 टैक्स स्लैब्स, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. ये खाली 5 स्लैब रेट्स पे हमारी कंट्री पे जीएसटी अप्लाई होता है, या यू कैन से कि इट इज एप्लीकेबल इन दीज 5 स्लैब रेट्स. अब इसमें आते हैं कि हमारा जो जीएसटी है वो अप्लाई कैसे किया जाता है. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट इज एन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन एंड सेकंड इज एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. इंट्रास्टेट मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जो हमारे ही स्टेट के अंदर हो रही है. फॉर एग्जाम्पल झारखंड में अगर आप रांची से जमशेदपुर पे गुड ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आप धनबाद से रांची पे गुड ट्रांसफर कर रहे हैं, सो ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर हेल्ड विद इन दी स्टेट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन व्हिच इज एन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन. इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन इट इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 स्टेट्स. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर ट्रांजैक्शन बिटवीन हरियाणा एंड केरला इज एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. तो दोनों ही केसेस में इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट और द जीएसटी इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल कमिंग टू द इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन व्हिच इज द ट्रांजैक्शन इन द सेम स्टेट, 2 GSTs are applicable. First is the CGST which is sent to the central bank and the second is the SGST which is sent to the state government. So CGST is sent to the central government, SGST is sent to the state government. In case of interstate transaction, there is only IGST which is integrated GST. In this we add both the CGST and SGST and we calculate only one GST which is the interstate GST or IGST, integrated GST, and it is only applicable and it is sent to the central government. Now coming to CGST, suppose there is 6% CGST and 6% of SGST which is applicable. When you add these two, IGST will be 12%. Or you can say that if on a good 12% GST is applicable, if it is an interstate transaction, full 12% will be sent to the government, and if it is an intrastate transaction, then CGST 6% will be sent to the central government, SGST 6% will be sent to the state government. Now this was the concept about GST. Now coming to the GST, output GST and input GST. Now basically when you purchase a good, the GST which you pay on the purchase of the good is called the input GST. So you can say that input GST is the GST paid, and the GST which you pay on the collection on the sale of the goods, or which you collect on the sale of the goods, is called output GST. So output GST is the GST collected. So within all the 3 types, CGST, SGST and IGST, there are both the parts output GST and input GST. For example, I am a wholesaler. When I purchase a good from the manufacturer, I will pay in GST which will be considered as input GST, and when I sell that good to a retailer, then the GST which will be collected by me from that retailer will be the output GST. Now in the case of input and output GST, the government has set certain rules which says that the supplier will have to pay the net tax. नेट टैक्स इन द सेंस कि जितना आपने जीएसटी कलेक्ट किया एंड जितना आपने जीएसटी पे किया, उन दोनों में जो डिफरेंस है आप बस गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स पे करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने इनपुट जीएसटी में 200 कलेक्ट किया है, पे
जीएसटी में आई हैव कलेक्टेड 300, तो हमारे पास सरप्लस कितना है 100 रुपीज है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे 300 माइनस 200 which is ₹100, this will be sent to the central government. Alright, तो इसको कहा जाता है सेटिंग ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है कि जितना आप जीएसटी पे कर रहे हैं या आप जितना जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो जो नेट अमाउंट आता है दैट इज द टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। सो यू कैन से दैट वी कैन सेट ऑफ आवर इनपुट जीएसटी फ्रॉम द आउटपुट जीएसटी। ऑलराइट, तो इसके बारे में लेट अस डिस्कस मोर कि कैसे ये टैक्सेस जो है वो एक से दूसरे में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप जीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द अदर जीएसटी। अब इसके लिए देयर इज अ सीक्वेंस व्हिच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो इसको आप इस टेबल में ध्यान से समझेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास ये इनपुट जीएसटी का कॉलम है, ये आउटपुट जीएसटी का कॉलम है। इनपुट मतलब वो जीएसटी जो हमने पे किया है एंड आउटपुट मतलब वो जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया है। और ये जो पूरा टेबल है इट शोज द सेट ऑफ सीक्वेंस। सेट ऑफ सीक्वेंस मतलब कि कैसे आप अपने जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे इजी सा टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। अगर आपके पास आईजीएसटी है, राइट, तो आप अपने आईजीएसटी को, आईजीएसटी मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो आपके पास जितना आपने आईजीएसटी पे किया है पहले आप उसको आईजीएसटी कलेक्टेड से सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है आईजीएसटी का, दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सीजीएसटी एंड सीजीएसटी से माइनस करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बचता है तो आप उसको फिर एसजीएसटी से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड है सीजीएसटी। इन द केस ऑफ सीजीएसटी आप अपने सीजीएसटी को पहले तो अपने सीजीएसटी कलेक्टेड से माइनस कर लीजिए, फिर उसके बाद भी अगर आपके पास कोई सीजीएसटी बच रहा है तो आप उसको अपने आईजीएसटी में अगर कोई सरप्लस है तो उससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एंड अल्टीमेटली अगर आपका एसजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी, उसको तो आप पहले अपने इस एसजीएसटी से माइनस कर लीजिए या सेट ऑफ कर लीजिए एंड अल्टीमेटली फिर भी अगर आपका जीएसटी बचता है तो उसको आप अपने आईजीएसटी से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको पहले अपने इनपुट आईजीएसटी को इनपुट आउटपुट आईजीएसटी से माइनस करना है। अगर कोई बैलेंस अमाउंट बच रहा है तो आपको सीजीएसटी से माइनस करना है, फिर भी कोई बैलेंस अमाउंट बचता है तो आपको एसजीएसटी से माइनस करना है। सिमिलरली अगर आपके सीजीएसटी का जो अमाउंट है, मतलब जो आपने सीजीएसटी पे किया है, उसको आप अपने सीजीएसटी से पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं और कलेक्ट कम होता है, तो उस केस में सीजीएसटी से जो आपका बैलेंस बच गया वो आप आईजीएसटी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे हमारा आईजीएसटी जो है, इनपुट आईजीएसटी 40,000 है एंड आउटपुट आईजीएसटी 25,000 है। हमारा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट रहने दीजिए, आउटपुट सीजीएसटी 5,000 है एंड आउटपुट एसजीएसटी 20,000 है। ठीक है, अब इसको आप सेट ऑफ कैसे करेंगे? हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा इनपुट सीजीएसटी मतलब सॉरी आईजीएसटी, दिस इज द टैक्स पे एंड ये सारे हमारे टैक्स कलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, इस 40,000 जो आपने पे कर दिया है इसको आप नेट निकालने के लिए माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो सीक्वेंस क्या कहता है, आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने आउटपुट आईजीएसटी से इसको मूव करने की कोशिश करते हैं, सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो 25,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, आ गया 15,000। अभी भी हमारा जो टैक्स पेड है
वो मतलब ज्यादा है हमारा, क्योंकि हमारा 15,000 अभी भी बैलेंस बचा है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमने जो आउटपुट CGST पे किया हुआ है उसमें से भी हम इस अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आउटपुट GST 5,000 है, तो हम 5,000 यहाँ से रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास फिर भी 10,000 इतना अमाउंट है GST का जो हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। अब इस 10,000 के लिए हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन है विच इज दी SGST। अब इस SGST से हम कैसे कंपनसेट करेंगे? तो हमारे पास SGST ऑलरेडी 20,000 है, 20,000 में से वी रिक्वायर ओनली 10,000, तो हम इसमें से ये 10,000 माइनस कर देंगे एंड अल्टीमेटली हमारा जो भी टैक्स हमने पे किया था वो कंपनसेट हो जाएगा बाय द टैक्स कलेक्टेड। तो अब हम नेट टैक्स जो हमें IGST पे करना है, इंटीग्रेटेड GST टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो निल हो जाएगा। ये होता है जब हमारा इनपुट GST आउटपुट GST से ज्यादा होता है। बट अगर एक नॉर्मल सा केस है कि हमारा IGST भी 40,000 था, आउटपुट GST भी, सपोज मैं यहाँ लिख लेती हूँ, हमारा जो आउटपुट GST IGST था वो भी 40,000 अगर होता, तो यहाँ पे 40,000 कलेक्ट किया है, 40,000 पे किया है, तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो आप नॉर्मल सी जर्नल एंट्री पास कर दोगे, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST अकाउंट। क्लियर? अब अगर आपका आउटपुट IGST 50,000 मतलब कि आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो 50,000 है और आपने जो टैक्स पे किया दैट इज ओनली 40,000, तो इस केस में क्या करेंगे, हम अपने टैक्स कलेक्टेड को इससे सेट ऑफ कर लेंगे, मतलब कि 40,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास 10,000 सरप्लस है क्योंकि ये कलेक्टेड अमाउंट है, तो ये जो 10,000 सरप्लस है इस अमाउंट को हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे थ्रू बैंक। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST अकाउंट, अमाउंट यहाँ 40,000 चल जाएगा, एंड टू बैंक करके जो बाकी का 10,000 है GST दैट विल बी पेड टू दी गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑल दिस फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट है डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।